So what we have been studying, last time हमने study किया था forced oscillation. So we just हमने क्या किया था? We had an external some thing, a system under which the particle got इसकी under that force the particle was oscillating a bit, है ना? Three oscillations in one dimension, and we restricted that wheel motion in one dimension only, and that's what we have done. And the corresponding जो भी हम इसका in terms of complex analysis लिखा था. Today we are going to force oscillation. We did it in the previous class. Last class में हमने इसका general निकाला zeta and इसका solution. In today's class, what we are going to do, we are going to study oscillations in oscillations of systems with more than 1 degree of freedom, with more than 1 degree of. So what does it mean? One means in the last class we just restricted oscillation in only one dimension. Either it was maybe longitudinal or transfer जैसे भी है ऐसे, ठीक है? And that too small oscillations, ठीक है? And that too equilibration के बाद हमने थोड़ा सा forced oscillation लिया, ये externally थोड़ा सा externally driven oscillator, थोड़ा सा हमने इसको tinker किया from outside the system, जिसकी वजह से oscillation हमने किया not second or first order oscillations. So today what we are going to do the same problem. अब we are not going to restrict it to one dimension. मतलब एक plane में नहीं हो सकता है. In the general form, along x-axis, along y-axis, along. So if we take Euclidean space, we have 3 dimensions. You can have an n-dimensional space also. So in principle, you can have as many oscillations as many. So in 3-dimensional space, we have 3 parameters. We restrict our understanding of oscillation in 3 dimensions, x, y, and z. Okay? And the point to mention always is that 3-dimension is also a construction. Space is not necessarily 3-dimension. Okay? So we are studying classical mechanics in 3 dimensions. And we are not restricting our study of that motion of a particle in 1 dimension only. It can be in any. So we have a general form क्या होगी इस equation की in any dimension. So before we are going to say it, तो हम क्या कर रहे थे? If you remember, हम जो coordinate ले रहे थे ऐसे ले रहे थे हम. If you remember, so it was some point. दूसरा हम कहते हैं ना differentiability of a function कैसे define करते हैं? We don't define the function, how the function varies, इसका slope, neighboring a point, not at that point. है ना? So in the same way जो oscillation हम study कर रहे हैं, we don't study at that stable equilibration point, जहाँ पर particle will ultimately settle down. We'll study इसकी इधर उधर कैसे चलेगा, and जो उसका first order होगा, है ना? QI minus Q naught. फिर हम इसका Taylor expansion पिछली class remember x पहली term आएगी x into Q minus Q, फिर आएगी x square by 2 factorial. हमारा सेकंड डेरिवेटिव, फिर x माइनस एक्स क्यूब आएगा, फिर हमारा 3 फैक्टोरियल आएगा, बट थर्ड डेरिवेटिव आएगा. तो ऐसे करते करते वी कैन एग्जॉस्ट ऑल पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल्स इज ऑसिलेटिंग अलोंग a given curve. But since we are only interested in the first few orders of oscillations, so we are going to restrict our study about motion or oscillation about that equilibration point के आगे पीछे. ठीक है? उसमें जो हमारी फॉर्मूला है ना t is equal to 2 pi k by m या l by g, that's an approximate formula. तो अब इसमें थोड़ा सा हमारा जो आइडिया ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी है. जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमने क्या कहा था? इफ यू स्टार्ट वी डिफाइन लैग्रांजियन ऑफ ए सिस्टम vis-a-vis some Lagrangian system. So Lagrangian of a system vis-a-vis जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि लैग्रांजियन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम एंड पोजीशन वेरिएबल को ऐसे डिफाइन करते हैं सच दैट जो मोशन कैसी होगी. सो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ना, वी कैन चूज कोऑर्डिनेट सिस्टम
accordingly. ठीक है? So we will not have a normal position or normal momentum. We will have a generalized momentum or generalized position, which will accordingly adjust to the coordinates we are interested in. Such that we can have some cyclic coordinates or invariable coordinates. For example, अगर motion plane में चल रही है तो एक है, अगर cyclic circle में चल रही है तो हम spherical coordinate लेंगे. So that will do away with lot of parameters and make our equations of motion थोड़ा उनको कम करेगा, आसान करेगा. Because at the end of the day, the Lagrange equation of motion is a differential equation, है ना? dl by dt of dl by dx dot minus dl by, अब उसमें x I है ना सबस्क्रिप्ट में, I can take value from 1 to n, so there may be variables किस कोऑर्डिनेट में होगा, x equal I x is equal to 1 हो गया x कोऑर्डिनेट, x equal to 2 हो गया y कोऑर्डिनेट, so n कोऑर्डिनेट्स में. So your solve is studying the motion of particles in n coordinates. ठीक है? Now we are studying not motion of general motion, we are studying oscillation of particle in first one coordinate along then you can generalize it. तो अब हमारे जो if you remember जो हमारी इसकी potential energy है, so it will be in the form of poised to definite quadratic form. So I just say it what it is. एंड इसकी जो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को विल आल्सो बी रिटन एज जो लैग्रांज ऑफ सिस्टम है, इट्स बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म एक साथ है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो वी विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस. देखो अब इसमें ये है ना, नॉर्मली हम जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं 1/2 है ना, इस तरह काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं 1/2 mx डॉट स्क्वायर. तो ड्यू टू लैग्रेंज ऑफ ए सिस्टम हम यहां लिखेंगे xi x डॉट की xi डॉट. ठीक है? सो इट्स ऑल्सो मोशन विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स. ठीक है? So that's why it also depends upon I and K. So where example resultant लेते हैं दो वेक्टर्स का कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, that also depends upon the orientation of, अगर दो फोर्सेस हैं, एक इसको इस तरफ खींच रहा है, दूसरा इसको दूसरी तरफ खींच रहा है, तो नेट रिजल्टेंट क्या लेगा, है ना? that will be depend upon इसका कैसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे लेंगे. तो उसी की दूसरी फॉर्म ये है कि हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ दीज पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स, उसी का फिर आएगा मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम उसी में आता है. ठीक है? px डॉट, तो उनका क्या आएगा, xi डॉट xi k डॉट एंड दिस ki k, दिस ki k. अब इसमें सिर्फ ये है कि जब अभी आप यू स्टडी द लास्ट क्लास पढ़ रहे थे ना, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस, some conditions. There are some conditions where, for example, ki k, अगर जो ki k is equal to kki. So if it is that way, then there is a property, symmetry property जो hold करेंगे. So if you exchange यहाँ पर ki k को आप exchange करेंगे या पार्टिकल mi को आप exchange करेंगे, तो it will not matter. तो दिस इज नोन एज, जो उनके कोफिशिएंट्स हैं, उनके कोफिशिएंट्स दे हैव दिस प्रॉपर्टी. सो जो लैग्रेंज ऑफ ए सिस्टम हम जनरल करेंगे, सो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन जो है ना, इसकी अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन आप टेंसर्स में पढ़ेंगे. सो बेसिकली नॉर्मली वी स्टडी क्वांटिटी, फिर हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. फिर जिस तरह आप डाइवर्जेंस कर्व लेते हैं ना, हाउ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर चेंजेस इन स्पेस. ठीक है? उसी को हम आप देखते हैं डाइवर्जेंस ग्रेडियंट बेसिकली. ठीक है? सो हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, उसी को हम टेंसर कहते हैं एज ए क्वांटिटी. दे चेंज इन स्पेस. सो दीज पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स दे आल्सो डिपेंड अपॉन देयर ओरिएंटेशन, भी कैसे स्पेस में चेंज होती है, हुए कैसे चल रहे हैं. ठीक है? अदर दे आल्सो हाउ दे वेरी विद ईच अदर, किस ओरिएंटेशन में, किस एंगल पे, उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी हम लेंगे.
ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट वी कैन एम्फसाइज. सो जो लैग्रेंज ऑफ सिस्टम हम हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू एम आई के एक्स आई डॉट एक्स की डॉट माइनस के आई के एक्स आई एक्स की. अब इफ इट इज लाइक दैट सो इसका अब डेरिवेटिव ऑफ द लैग्रेंजियन, मतलब हाउ लैग्रेंजियन चेंजेस फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, है ना. इनफिनिटेसिमल चेंज इन द लैग्रेंजियन क्या होगा स्पेस में, इसमें आप इसका डेरिवेटिव करेंगे. एक बार इसका डेरिवेटिव, सो यू गेट 4 टर्म्स आउट ऑफ इट, है ना. एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका इसकी भी 2 टर्म्स आएंगे, इसके भी 2 टर्म्स आएंगे. सो इफ आई स्ट्रेट अवे राइट इट विल बी के एक्स आई की डी एक्स की डॉट प्लस एम आई की, तो इसको यहां अपना रखेंगे, तो इट विल बी डी एक्स आई डॉट, इसी तरह माइनस के आई की डी एक्स आई एक्स की माइनस के आई की एक्स आई डी एक्स की. ठीक है, सो विल हैव 4 टर्म्स. Again, what we are going to use the symmetry property of this mi key and ki key. So by the symmetry property, he is saying we can change the parenthesis. We can interchange I and k. आयन के को अगर हम इंटरचेंज करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस मीन्स इसको यहां रखेंगे, इसको यहां रखेंगे. सो इफ यू डू दिस थिंग, दिस लैग्रेंजियन कैन बी, इसमें यहां से आपको 2 टर्म्स आएंगी, यहां से 2 टर्म्स आएंगी. दीज टू विल कैंसिल विद दिस 2. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, एम आई की एक्स की dxi dot dxi ki is equal to xi dxp minus ki k xp dxp dxi. सॉरी, तो वी हैव डन नथिंग. हमने क्या किया, दिस यहां से पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया लैग्रेंजियन को, वी गॉट 4 टर्म्स. बाय दिस सिमेट्री प्रॉपर्टी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, वी गॉट 2 टर्म्स. So if you write Lagrangian of a system this way, अब हम आएंगे अपने वाले, how we just had an equation of motion of a Lagrangian of a system. क्या है शाबाश, if you remember, dl by dx minus dl by dt of dl by dx dot is equal to 0 या कुछ constant है. This is the equation of motion. Equation of motion कौन सी, जिसका आपके पास है ना your earlier classes, F is equal to mu, वो भी है ना इक्वेशन ऑफ मोशन. अब वो है क्लासिकल मैकेनिक्स में, इन हायर क्लासेस वी डोंट स्टडी F is equal to mu, उसका फॉर्म ये है. एंड दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हमने ऐसे भी लिखा, इन्फिनिटेसिमल चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हमने ऐसे लिखा, इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म ऐसे लिखा. एंड लास्ट टाइम मैंने कहा था कि व्हाई यू जस्ट टेक रिपोर्ट्स टू लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म, उसके अपने एडवांटेजेस हैं. The way we define generalized coordinates and the way we define these xi, xp, velocity will also depend upon. अब ये अगर है तो हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन का फॉर्म क्या आएगा, dl by dx डॉट, तो एक का क्या आएगा शाबाश, dl by dx i, ये आएगा यहाँ सिर्फ mx डॉट, एक आएगा mx डॉट mi की x के ये आएगा डॉट माइनस dl by dt ऑफ dl by dx डॉट, तो ये आएगा यहां पर. आएगा कि नहीं, x की डॉट
जस्ट थिंक सो डीएल बाई ये आ रहा है हमारे पास हाँ एक्स डबल डॉट एक्स डबल सो कैसे आ रहा है डेल सो डी एल बाई डी एक्स डॉट हाँ ठीक है ठीक है सो पहले आप देखो डी एल बाई डी एक्स डॉट देखो क्या आएगा तो डी एल बाई डी एक्स डॉट अगर आप देखोगे तो ये पहली वाली टर्म आएगी ठीक है पहली वाली टर्म में डी एक्स डॉट ये कैंसिल हो जाएगा एम आई डी एक्स आई ये आएगा ये वाली इसका साथ ये आएगा एंड फिर अगर आप लोग डी बाई डी टी ऑफ डी एल बाई डी एक्स डॉट डी बाई डी टी ऑफ डी एल बाई डी एक्स डॉट तो ये आएगा कैंसिल हो जाएगा हाँ तो यहाँ ये आएगा ये डी एक्स आई डॉट है फिर उसका डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स आई डॉट आएगा सो यू कैन राइट इट लाइक दिस सो यू जस्ट इसको आप इस लैग्रांजन को पहले आप x के साथ करो डिफरेंशिएट फिर उसको डी एल बाई डी एक्स डॉट के साथ डिफरेंशिएट करो मर बाहर आएगा डी बाई डी टी एंड द इक्वेशन विल टेक दिस फॉर्म हाँ हाँ अब यहां पर देखो जो वेरिएबल्स है ना आई गोज फ्रॉम 1 2 सो ऑन है सो जो है आपके वेरिएबल्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है एक पार्टिकल है ना सो दे आर अब नाउ इसी में जिस तरह हमने वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एस जिस तरह हमने यस्टरडे एस लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक्स के को हम जिस तरह हमने कल कहा ना वी जस्ट यूज एक्स के को आप देखिए हमारा एक्स के या यहाँ एक्स के डबल डॉट नो एक्स के को वी आर नाउ गोइंग टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस तरह यस्टरडे हमने किया था लास्ट क्लास में so that we are going to write xk as a k exponential of iota omega t है ना so it will be as if ये है ना exponential of v क्या है it's basically cos omega t plus iota sin but basically it's what cos wave and sin wave ये इसका एम्पलीट्यूड है so we are trying to see the oscillation of the system है in terms of cos and sin wave length ठीक है अगर हम graphically try and this corresponds to the amplitude of the system so you are studying basically a small oscillation of a system which is restricted to पहले हमने one dimension we can go for n dimension that we are studying अब इसी xk का वैल्यू हम यहाँ लेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे दो बार डेरिवेटिव आएगा ना एक बार डेरिवेटिव आएगा x डॉट तो एक बार एक ओमेगा बाहर निकलेगा दो बार डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा इसी तरह यहाँ बाहर आएगा सो यू कैन हैव दिस इक्वेशन अगर आप इसको आप यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करो दो बार डेरिवेटिव करने से यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा सो द इक्वेशन विल टेक दिस फॉर एक बार आएगा ये आयोटा ओमेगा आएगा बाहर दूसरी बार भी आएगा आयोटा ओमेगा आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर हो गया -1 दैट्स व्हाई v माइनस सो इक्वेशन विल बी द फॉर्म आएगा हमारे पास एम आई के प्लस के आई के आप देखो ये है दूसरे वाली इक्वेशन में इसको के आई के को बाहर निकालेंगे एक्स के बदले हमें लिखा ना ये तो ये बाहर आए निकलेगा ये तो ये इसके बदले ये लिखेंगे एक so this is the solution of we are studying the small oscillation solution फर्स्ट हमने जनरल लैग्रांज सिस्टम लिया फिर लैग्रांज सिस्टम का फॉर्म लिया आएगा इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फिर इसको हमने xk को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया एंड देन द इक्वेशन टू दिस फॉर्म यहाँ तक ठीक है ना हाँ कुछ पूछना है हाँ अब आप यहाँ तक पहुंचे ना अब वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन जिस तरह आप क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं ना कोई भी लीनियर अलजेब्रा में करते हैं so we have to find this equation in some parameters तो अब वो simple काम तो you can also write it as आप जैसे आप करते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशंस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आप फॉर्म करते हैं
माइट हैव, जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू निकालते हैं ना, हाउ टू सॉल्व। अब क्योंकि यहाँ पैरामीटर्स है ना, इट कैन बी आई के इट कैन गो फ्रॉम 1 2 3, के कैन गो फ्रॉम 1 2 3, ठीक है। So in these two variables, how we can solve a given equation of this form, which will correspond to the solutions of those variables, which are the oscillations of the system, ठीक है। I का वैल्यू आप 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। हाँ, where omega alpha square alpha is equal to 1 2 so on and so forth. Omega alpha is called characteristic frequencies or eigen frequencies, है ना। ओमेगा जो हमारे पास है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन, वही ऑसिलेटिंग पार्टिकल, स्मॉल ऑसिलेटिंग पार्टिकल, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसी को हम क्या कहते हैं, eigenfrequency also. So we are studying, so this is solving this equation will give us particular value of the omega frequency, ठीक है, जो हम उस oscillating particle का लेंगे, उसकी characteristic frequency क्या होगी, you can exactly determine its value, ठीक है, that's the point. अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप while solving a quadratic equation है ना, sometimes you have values, हम कहते हैं we reject these roots, negative values, है ना, imaginary values. तो इसमें भी जो इसमें characteristics values जो ओमेगा के हैं, so all of them have not to be taken. For example, ये कह रहा है कि if we just go to the logic of the book, what he says that the imaginary part of omega would mean the presence in the time dependence of the coordinates. So अगर imaginary part of omega means time dependence of the coordinates, इसका मतलब ये है कि जो total energy of the system है, it will also depend upon time. अगर टाइम पे डिपेंड होगा टोटल एनर्जी, तो सिस्टम की एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। अगर एनर्जी ऑफ द टोटल देखोगे कंजर्व क्लोज सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट, मगर टाइम के साथ एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो दिस इज दोज वैल्यूज हैव नॉट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब इसमें जनरल वे क्या है सोल्यूशन, हाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म और सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक सिंपल मेथड है, ये है ना ए के, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे ए के स्टार के साथ, जैसे अभी आप कर रहे थे ना, मल्टीप्लाइंग ए बाय ए डैगर, ए डैगर इज इक्वल टू 1. जब नॉर्मलाइज, हाउ यू नॉर्मलाइज एनी गिवन फंक्शन, ठीक है। इन द सेम वे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू से इट, जैसे ये हमारे पास एम आई के प्लस ए आई के, ए आई स्टार ए के इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय ए आई ए के स्टार। सो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आएगा ना ऐसे, पहले इसको जहां लाओ एक साइड से, के आई के ए आई स्टार ए के, ये आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा एम आई के, हाँ एम आई के सिग्मा ए आई स्टार ए के। अब इसमें ये है, अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये है ना ए आई स्टार ए की, ये ए आई स्टार ए की। अब ये कर सकते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यूज सच दैट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ए आई स्टार ए के इज इक्वल टू ए के स्टार ए आई, मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इनटू इट्स ट्रांसपोज। इफ यू चेंज द ऑर्डर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज हियर। सो इसी को अगर हम, इफ यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज,
मैथमेटिकल फॉर्म अगर इसी बात को हम ऐसे कहेंगे, ए आई ए के स्टार, ए आई के ए के स्टार, ठीक है। सो अब ये कह रहा है कि देयर ऑल दीज ऑल वैल्यूज वाज दे आर पॉजिटिव, these all values are positive and therefore omega square is positive, therefore omega square is positive. So if you use, so if you use this property here, so this means you will get value of omega square. ये omega क्या है? ये frequency of that wave है ना, frequency of that particle है, ठीक है, small frequency of that particle है, which we normally restricted in पिछली क्लास में one dimension. In this class we have taken it in any dimension. कौन सा आई के वैल्यू जो भी आएंगे, ठीक है। so this way we can determine omega, and ये कह रहा है कि omega के values from this they will be positive only, ठीक है। अब further अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और we are going to study it into some simplified form. जिस तरह हमने यहाँ एक simplification की ना, x को हमने ऐसे डिफाइन किया in terms of a. अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे to make it more simpler and see what are the other things which will come out while we are going to study it. So what we are going to do is that normally हम निकालते हैं ना what we have found if we substitute them in 23.7, if we substitute them in this equation. अब ओमेगा के वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे, जिस तरह कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं पहले पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं, when particle moves है ना, हम कहते हैं if it moves from rest or if it moves from all its motion, v is equal to u plus at है ना। फिर कभी आप इनिशियल वैल्यू लेते हैं ना u का, कभी u को 0 रखते हैं कि नहीं, फिर हम कहते हैं पार्टिकल कहाँ पहुंचा। इस इन द सेम वे अब जनरल ओमेगा हमने निकाला, अब इस ओमेगा को निकाल सॉल्व करना है ना इन दिस जो भी है हमारे पास इक्वेशन which will give us the different इनिशियल वैल्यू कंडीशंस, ठीक है, और उनको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहेंगे या अभी कह रहा है if all the roots of, अब इसमें all the roots of omega alpha of characteristic equation are different, then minus of the determinant 23.8, then the minus of the determinant with omega is equal to omega alpha. Then coefficient AK are proportional to the minus of the determinant. अब ये कह रहा है what if all the roots of this characteristic, ये है ना ओमेगा के वैल्यू सेम नहीं होंगे, ओमेगा के वैल्यू फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दे विल डिफरेंट, ओमेगा के वैल्यू 2 3 4 जो भी होगा। if it is that way then AK are proportional to this, AK is proportional to what? To the minus of the determinant. Then AK is proportional to the minus of the determinant. Minor of the determinant समझते हैं? अब निकालते हैं minor. When you study matrix form, how you solve the general characteristic equation. अब थोड़ा सा matrix algebra वहाँ देखना आप minor कैसे निकालते हैं. इसमें निकालते हैं डिवाइड बाय माइनर और डिवाइड करते हैं और सॉल्व जनरल लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, इनहोमोजेनियस इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो वी आर बेसिकली सॉल्विंग दिस ओमेगा, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ओमेगा, बट क्योंकि हमारे पास ये है ना ये सॉर्ट ऑफ एम्पलीट्यूड का वैल्यू देता है,
एम्पलीट्यूड क्या हो गया, तो पार्टिकल कहां से कहां तक मैक्सिमम जाएगा. So we are trying to study AK in terms of omega. अब अगर ओमेगा का एक वैल्यू कह रहा है, नहीं सेम वैल्यू नहीं है, इसके डिफरेंट वैल्यूज है, देन वी हैव टू सी उसका ये वी हैव टू सी इसका वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट. तो उसी को अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा अल्फा, अभी कह रहे हैं इन सब माइनोर्स को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा की एल. एंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर हम लेंगे, जनरल सोल्यूशन नहीं, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर हम लेंगे या पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन लेंगे, सो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे. सो दैट द पॉइंट व्हाट वी हैव डन. तो यहां पर हमने ओमेगा का वैल्यू निकाला, ओमेगा का वैल्यू को अपने इक्वेशन में डाल दिया, बट वहां हमने देखा कि ओमेगा के अगर डिफरेंट वैल्यूज हैं, हाउ वी कैन रिलेट ओमेगा एंड ए की एम्पलीट्यूड. और वहां से हमको पता है कि जो हम उसका माइनर होना चाहिए पता. ठीक है, अब हम करेंगे काम एक जनरल, जिस तरह हमने पिछली बार सिंप्लीफाई किया, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा. वी आर गोइंग टू राइट इट फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू एक्स के वैल्यू व्हिच इज हियर दिस डेल्टा के इज द माइनर ऑफ दिस थिंग. इसको हम इन टर्म्स ऑफ दिस लिखेंगे. एंड फर्दर इस सब एक्सप्रेशन को यहां से यहां तक को हम इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा अल्फा लिखेंगे. थीटा अल्फा का इसका हम रियल पार्ट लेंगे. और इसके बदले अगर हम ये लेंगे, इसका रियल पार्ट लेंगे, सो यू कैन राइट इट एज सिग्मा अल्फा के अल्फा डेल्टा की अल्फा. तो इसमें जो पर्टिकुलर वैल्यू ये है ना, कोऑर्डिनेट पोजीशन वैल्यू, इट्स डिपेंड अपॉन दिस डेल्टा की अल्फा एंड थीटा अल्फा. थीटा अल्फा ये है एंड डेल्टा की अल्फा ये हैज माइनर इन इट, माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट. ठीक है, तो दिस इज वेयर वी हैव गॉट. अब ये क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, फॉर एन वेरिएबल्स. हमारा मकसद है फॉर एग्जाम्पल कैन वी सॉल्व इक्वेशन इन अ पर्टिकुलर डायमेंशन. फॉर एग्जाम्पल द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और z डायरेक्शन. क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? सो इफ यू रीड द पैसेज ऑफ द बुक, तो हम क्या करेंगे काम अगेन टू सॉल्व इट for example there are s equations, so we will only restrict our study in one dimension only. For example, or one simple oscillation only which is restricted in one direction. तो हम क्या करेंगे काम, इसमें जो अगर हमारे पास ये थीटा है ना, थीटा 1 थीटा 2 थीटा s, इन टर्म्स ऑफ इसको हम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x1 x2 so on and so forth. ये तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ही है. अब इनको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड द ऑसिलेशन को हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल ऑसिलेशन. ठीक है, हाँ. सिंस वी आर इंटरेस्टेड, सो अगर हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल ऑसिलेशंस, तो हम हमारा जो ये है हमारा ये है सो इक्वेशन विल टेक दिस फॉर्म. अगेन ये है ना, ओमेगा को लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ यहां पर अगेन इसको है ना ये थीटा थीटा, आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो अगेन इट विल टेक द फॉर्म जो हमारे पास पिछली बार इक्वेशन का फॉर्म है, प्लस ओमेगा अल्फा स्क्वायर थीटा अल्फा. तो अब इसमें आप ये है ना, थीटा में क्या है, नॉर्मली थीटा में माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट भी था. अब थोड़ा सा इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, बट थीटा को हम इसका रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल लिखा, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा, ओमेगा में फ्रीक्वेंसी ऑफ
of the particle which is being oscillated. But since we are interested in normal oscillations means it's restricted in one dimension. ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि पार्टिकल अगर मैंने इसको थोड़ा सा धक्का दिया ये कहाँ पहुंची, अब कहाँ आपने धक्का दिया ना और फोर्स्ड ऑसिलेशन है, इट विल डिपेंड अपॉन कि आपने कौन सा कोऑर्डिनेट यूज किया, एक्सिस को 3 सेंटीमीटर पे धक्का दिया, 4 पे दिया, कहाँ पे दिया, along किस curve पे किस पॉइंट पे दिया, there can be infinite points. So those are those characteristic solutions of those very points. ठीक है, I'll just take 2 minutes. And again, if you want to write Lagrangian of the system, so we can write it like this. अब इसमें ये है कि थोड़ा सा ये कह रहा है कि we can write these coordinates in terms of Q coordinates को हम in terms of m root of m a q alpha. If you go to the book, he has written this coordinate in terms of this as in the simplified form, and then try to rewrite this Lagrangian in terms of this redefinition of Q alpha in terms of इसमें mass term भी है, ठीक है ना, sometimes we substitute something, we arrange something, इससे हमारा कोई फायदा आता है. So if we without thinking कि अभी क्या फायदा आएगा, if we define things that way, the Lagrangian of this thing for normal oscillations can be written like this: Q alpha dot square minus omega alpha square Q alpha square. About discussing means little alternation in the characters. Roots coincide. Means coincide means theta alpha is equal to this thing. अब ये है कि नॉर्मली जो अगर आप Lagrangian of a system लिखते हैं ना ऐसे, if you write Lagrangian of a system, आप ऐसे लिखते हैं ना, x dot square plus y dot square plus अब ये है ना ये K1, K2, K3. So in terms of oscillation अगर हम लिखेंगे ये ओमेगा is equal to omega 2 is equal to so if K1 is equal to K2 is equal to K3 is equal to K, so ये general form of this thing. The particle may be oscillating in x direction, y direction. Since we are interested in the only one plane, we can take K1 is equal to K2 is equal to K3. Omega 1 is equal to K dot, omega 2 is equal to this. ठीक है, so that's it. And u का वैल्यू हम लेंगे ऐसे. अब we are at the end. What we are going to do is that हम कोई भी सिस्टम ले रहे हैं, Lagrangian of a system means total energy of system, particle is at rest, जो हमारी मेन पोजीशन थी. In presence of forced oscillation, particle इधर से उधर गया, है ना? तो total Lagrangian of the system क्या होगा? The Lagrangian at rest and the external force, जिसको हम impulse भी कहेंगे. So if people, if you last class में last का equation हमारे पास in terms of impulse लिखा था. So we are going to write this entire thing in terms of इसको हम उसी form में अगर लिखेंगे, so the equation will take this form. अगर Lagrangian है, total Lagrangian of system is Lagrangian of the system at rest and
एफ डी टी, एफ एक्स टी, और if you replace these coordinates with the normal coordinates, normal coordinates में क्या हमारा था, एक था चलो normal coordinates में x1 is equal to this k1 is equal to k2 is equal to k3, because we are restricting this motion only one dimension. If you just change, so Lagrangian of a system जो हमारे पास आएगा in terms of QL dot लिखेंगे, it's Q alpha dot square अपना Q अल्फा स्क्वायर और ये अपना ये आएगा. अब इसने इसको दिस इक्वेशन को एफ डी टी को हम इसने ऐसे लिखा है. सो हियर द बुक हैज रिटन इट लाइक दिस, और इंपल्स का फंक्शन इसने ऐसे लिखा है. यहाँ रूट ऑफ एम अल्फा इसलिए है क्योंकि हमने वो रिडिफाइन किया था वहां पर इन टर्म्स ऑफ रूट ऑफ एम. एक बार इक्वेशन आप देखें. अगेन अगर आप इसका आप लोगे ना, अगेन इसका आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, पहले इसका डेल्टा एल लोगे, फिर उसका इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिखोगे आप डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी एक्स माइनस डी एल डी बाई डी टी ऑफ डी एल बाई डी एक्स डॉट. अब इसका यही फॉर्म, अब यहां डीएल एक्स नहीं है, डीएल क्यू है, क्यू है डी क्यू डॉट. ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप एक बार करोगे डीएल बाई डी क्यू डॉट, एक बार करोगे डीएल बाई डी क्यू. ठीक है, एंड सी व्हाट द इक्वेशन टेक्स द फॉर्म. द इक्वेशन विल टेक दिस फॉर्म. आप देखो, यू कैन सी इट, आंखों से भी आप देख सकते हो, इसका दो बार आएगा डिफरेंशिएशन. टू अगर डीएल बाई डी क्यू आएगा तो ये जीरो आएगा, मगर यहां आएगा टू क्यू आएगा यहां पर. डीएल बाई डी क्यू डॉट आएगा टू क्यू डॉट. ठीक है, तो यू हैव दिस फॉर्म, इसका फॉर्म आएगा ऐसे ओमेगा एल स्क्वायर क्यू अल्फा. क्योंकि इसने यहां किया जीरो, सो इट विल कम ऑफ दिस फॉर्म. So this is the general each involve only one unknown function of q alpha t. ठीक है, so at the end so we have got this general equation. अब इसमें ये है कि जो QL है ना, you have to see QL को हम यहाँ पर in terms of यहाँ लिखा है ऐसे, यहां पर ये ओमेगा अल्फा डॉट, ठीक है, विच इज द फ्रीक्वेंसी. उस फ्रीक्वेंसी को हम तब तक नहीं पता कर सकते जब तक हमको ये स्मॉल इंक्रीमेंट में डेल्टा के नहीं पता होगा. डेल्टा के इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि जो हमने वो कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट इक्वेशन निकाली फॉर, उसमें हमने कहा कि इट विल हैव ईच वैल्यू फॉर ईच सॉल्यूशन. फिर हमने कोई पर्टिकुलर डेल्टा के लिए. ठीक है, सो दिस इज होल ऑफ द एक्सरसाइज. सो इट लुक्स मैथमेटिकली कम्बरसम, बट यू शुड नॉट इन द प्रोसेस ऑफ समटाइम्स, है ना, आप कोई चीज आप कर रहे हो बट यू समटाइम्स न्यूज हम कर क्या रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम, है ना, फोर्स विच इज रेस्ट्रिक्टेड इन वन डायमेंशन, एंड वी आर डूइंग दिस होल ऑफ एक्सरसाइज. देन जब हम सिंपल सिस्टम मोशन लेंगे ना, then we can go for complicated motions जो नेचर में हमारे पास, your heart is also oscillating, है ना, earth is also oscillating. परसों earthquake आ गया, वो भी तो oscillation है ना earth की, है ना, seismic, बट उसकी बेस यही है ना, seismic जो भी है frequency of earth में कहाँ वाइब्रेशन, लावा और मैग्मा में इधर उधर कहाँ गया जिसकी वजह से वाइब्रेशन होगी. यहाँ हम सिंपल वाइब्रेशन निकाल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक चला. ठीक है, When you study this thing, फिर उसी की वो हायर फॉर्म. ठीक है, so you should go कि सिंपल में कैसे निकालेंगे कोई चीज, then you can go for complicated things. So stop. चलो.